In one of my past videos, I've already shared my experience at the law faculty, Delhi University with you guys. And उसके बाद बहुत से students, they wanted to know what has been my experience at work. So in this video, I'm going to tell you everything about my work experience जो past में जितना भी time हुआ है 2015 से लेके अब तक, उसके बारे में मैं बात करूँगी कि मेरा work experience law को लेकर कैसा और क्या रहा है. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. So basically, I started working after my graduation, after my LLB. I took up a job. I did not sit for placements as such, but I took up a job at Mihari and Company. I would not really say it is a middle tier firm because the kind of clients they have all the PSU clients, and high profile cases, high stake cases are the ones that are taken by this firm. So I joined this firm with my first job, and this is the firm that I worked at throughout for 3 years, after which I started my independent practice. So I did not change to any other firm, and this firm is very dear to me. Even as on date, I am in full touch with the people there, and sometimes we keep working together as well. So basically, when I joined this firm, the first task that was assigned to me was list of dates. So there was an important case that had come up, a big case relating to a hospital, some fraud, scam, embezzlement relating to a hospital. They basically deal in civil, commercial, corporate cases. Now, since I had already interned at a lot of places, I knew how to draft list of dates, and I was quite confident. But मैंने list of dates तो दिया, basic list of dates मेरा सही था. However, the firm follows a practice जहाँ पर they are very very specific about each and everything. अगर आपको ये लिखना है कि एक ईमेल रिसीव हुआ है तो आपको पूरा लिखना है, एन ईमेल वॉज रिसीव्ड बाय, इट वॉज सेंट फ्रॉम दिस टू दिस ऑन दिस डेट तो आपने दी हुई है. यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, फर्दर यू हैव टू राइट द कंटेंट्स ऑफ द ईमेल. सो मैंने समरी फॉर्म में वो लिस्ट ऑफ डेट्स बनाई थी, मुझे आज भी याद है. एंड वहाँ पर एक हमारी सीनियर मैम हुआ करती थी. शी wrote an email to me that your list of dates is good enough, but then we follow this practice, and I could see there were red marks in the list of dates that I had created. And then basically I revised them, they were up to the mark. धीरे धीरे ऐसे ही फिर आई थिंक मेरे फर्स्ट मंथ ऑफ जॉब में ही मेरे को द बॉस, जिनको मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती हूँ, वी हैव बीन इन टॉक्स सेवरल टाइम्स कि हम उनके साथ एक वीडियो करें. वी आर जस्ट नॉट एबल टू फिगर आउट द राइट टाइम विंडो, ताकि आई गेट हिम हियर एंड यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट लिटिगेशन एंड लॉज फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम श्योर इट विल बी वर्थ इट. सो बेसिकली सर ने मुझे इनिशियली ही एक टेंडर के ऊपर काम करने के लिए दिया था. इट वॉज अ टेंडर पर्टेनिंग टू IOCL. IOCL इज़ वन ऑफ द मेजर क्लाइंट्स ऑफ दिस फर्म, एंड वहाँ पर हम लोग को टेंडर ड्राफ्टिंग करनी थी, एंड आई वॉज वर्किंग इन सिंक्रोनाइजेशन विद सर. बस सर और मैं उस ड्राफ्ट पे काम कर रहे थे, एंड वी हैड टू ड्राफ्ट दिस होल टेंडर, एंड इट वॉज माई फर्स्ट जॉब. आई वॉज टोटली वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट दिस कि मैं कैसे एक टेंडर को बनाऊंगी. मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है, बट सर की गाइडेंस के अंदर आई कुड डू सो, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. इवेंचुअली प्रोबेशन पीरियड्स जो था मेरा वो 6 months का था, बट आई गॉट अप्रूव्ड विद इन 3-4 months ओनली, बिकॉज सर का एक ट्रस्ट लेवल बन गया था, एंड वी वर वर्किंग टुगेदर. क्योंकि मेरा COP नहीं आया था, इनरोलमेंट के बाद COP आने में टाइम लगता है. आई वॉज नॉट रियली अपीयरिंग इन द कोर्ट्स, बट इन द मीन टाइम आई वॉज लर्निंग ड्राफ्टिंग. एंड मतलब this is one firm I would say that I'm really thankful and grateful to for the kind of drafting they've taught me. इसमें बेसिकली सर का बहुत इन्वॉल्वमेंट है. मेरी एक्स कोलीग हैं, उनसे भी मैं प्रॉब्ली आई मेक अप अ वीडियो विद हर. उनका भी हमारा आपस का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था. हमारा इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन था कि हम लोग बिकॉज कोर्ट्स में क्या होता था कि हम लोग मोस्टली सीनियर एडवोकेट्स हायर करते थे, तो
उन लोगों के लिए कभी कभी मुश्किल होता था टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट एट द राइट टाइम बिकॉज दे आर ऑक्यूपाइड इन सम अदर केस और दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द डे, सो वी हैड टू टेक adjournments ऑन देयर बिहाफ. सो हम दोनों साथ में जाते थे adjournments लेने के लिए. देयर वाज अ टाइम पीरियड, आई नो सुप्रीम कोर्ट गॉट रियली स्ट्रिक्ट अबाउट द adjournments एंड वी यूज्ड टू गो देयर लुकिंग एट द मूड ऑफ द जज, थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन करके हम लोग एडजर्नमेंट्स लेते थे. हमें आज भी उस फॉर्म में एडजर्नमेंट क्वींस बोला जाता है. एंड ऐसा भी हुआ है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में, आई थिंक जस्टिस कहर उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एंड वी गॉट costs imposed of rupees 3 lakhs on the other parties, and that was such a great day for us. कुछ ऐसे डेज हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं. आई रिमेंबर दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन थी ICAI को लेके, जो हमारा इंस्टीट्यूट है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड दे वर आवर क्लाइंट्स एंड आई वाज अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम. आई ड्राफ्टेड द होल रिट पिटिशन and I got that writ petition, I got a notice issued on that writ petition. ऐसे बहुत से matters ऐसे हैं जो बहुत special रहे हैं, and आज भी you know I sometimes keep following up कि उस matter में क्या हुआ है, कुछ आगे बढ़ा है, क्या हुआ है, कुछ matters dispose of हो गए हैं जो मैंने उस time से करे थे. एंड बहुत कुछ सीखा मैंने. आई ड्राफ्टेड अ लॉट ऑफ अग्रीमेंट्स, लीगल ओपिनियंस, रिटन ओपिनियंस दिए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करी, रिट पिटिशन, स्पेशल लीव पिटिशन, कंपनी लॉ बोर्ड के सामने जो पिटिशन्स होती हैं, ऑल्दो अब तो NCLT हो गया है, एंड CIRP पिटिशन्स, लीगल नोटिसेस, कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ये सब पिटिशन्स हमने फाइल करी. आई रिमेंबर एक बहुत स्पेशल एक और केस है, CCI के सामने एक इन्फॉर्मेशन फाइल करी थी हमने, एंड दैट इन्फॉर्मेशन, उसके पीछे बहुत ही स्टोरी है पूरी कि दिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली हम कंपटीशन कमीशन के सामने फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 4(5) ऑफ द CCI एक्ट, जहाँ पर हम बेसिकली कहते हैं सामने पार्टी ने अपना अब्यूज़ किया है डोमिनेंस का. तो एक इन्फॉर्मेशन थी जो कोल रिलेटेड मैटर्स को लेके थी, एंड वो बहुत टाइम से चलती आ रही थी. तो वो पिटिशन पे ना, मतलब इतने सारे लोग आके जा चुके हैं, एवरीबडी इज ट्राई टू ड्राफ्ट दैट इन्फॉर्मेशन, एंड हमेशा वो इनकम्प्लीट रही है. आई रिमेंबर जब मैंने ज्वाइन किया था, सो I think after a span of 1.5 year, I got confirmed as a senior, confirmed rather, I would say I got promoted as the senior associate, and sir had assigned me this task of the information, टेलिंग मी स्पेसिफिकली कि ये इन्फॉर्मेशन फाइल होनी है, ये आज तक नहीं बन पाई है. आई एक्सपेक्ट कि यू विल बी एबल टू यू नो ड्राफ्ट दिस इन्फॉर्मेशन एंड फाइल इट, एंड आई वॉज एबल टू डू इट. बहुत टाइम लगा. एक फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट था, उसके पूरे क्लॉजेस को चैलेंज करना था. आई वेंट थ्रू एवरी क्लॉज वन बाय वन, एंड आई फिगर्ड आउट कि क्या क्या हम इसमें चैलेंजेस रेज कर सकते हैं. लॉ इंटरप्रेट किया, रिसर्च करी, एंड फिर वो इन्फॉर्मेशन मैंने बनाई, वो फाइल करी CCI में, उस पर नोटिस इशू हो गया, एंड यू नो वी ऑलमोस्ट सेलिब्रेटेड अबाउट इट कि फाइनली दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन फाइल्ड. देन आई वुड से इंटर्न्स थे, आते जाते रहते थे फॉर्म में, एंड वी यूज टू टीच देम. उनको सिखाना भी ज़रूरी था, उनसे काम भी कराना था, बट एट द सेम टाइम मुश्किल होती थी थोड़ा टाइम ढूंढने में कि अपना काम भी करना है, सिखाना भी है, ड्राफ्ट्स चेक भी करने हैं, कोर्ट भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी. एंड प्रॉब्ली देयर आई लर्नड दिस जॉब ऑफ मल्टीटास्किंग. मैंने सर को देखा, सर बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम, एंड I really owe a lot to him. He is my guru, and मैंने बहुत सीखा है उनसे. इनफैक्ट ये जो फर्म है मेहारिया एंड कंपनी, आई एम श्योर कि जो यहाँ पर अच्छे से लग के काम करता है, दैट पर्सन यू नो एट द एंड ऑफ द डे लर्न समथिंग और द अदर फ्रॉम हियर. देयर इज़ अ लॉट टू लर्न. सर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, एंड यू नो देयर इज़ नो पॉलिटिक्स एज सच. ही विल पुट यू ऑन द फोर फ्रंट, ही विल गिव यू दैट लाइमलाइट कि आप ही इनिशिएटिव लो, आप ही केस को पूरा संभालो. एवरीथिंग इज यू नो पुट ऑन योर शोल्डर्स. ऑब्वियसली सर इज देयर टू ओवरसी, बट देन यू आर हैंडलिंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली टू एट द सेम टाइम. आप क्लाइंट से भी बात कर रहे हो एट द सेम टाइम.
सो ऑल दिस यूज टू कीप हैपनिंग, बहुत मैंने सीखा. एंड देन इवेंचुअली देयर वाज अ स्टेज दैट आई फेल्ट कि नाउ प्रॉब्ली आई कैन लुक एट द केसेस इंडिपेंडेंटली. सो आई स्टार्टेड माई फर्म, आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल सम टाइम बैक. एंड इन सब में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है. आई एम enjoying mentoring you guys and at the same time doing my independent job जो मैं कर रही हूँ. एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई वुड से कि अगर व्हेन you're done with your LLB, ड्यूरिंग योर LLB इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे जॉब सिक्योर करें, तो इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, यू माइट गेट इंडक्टेड, PPO ऑफर हो जाता है लोगों को. आई ऑल्सो हैड 1 or 2 अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दीज. सो इंटर्नशिप्स में सीरियसली रहना बहुत ज़रूरी है. देन आई वुड से कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, लिटिगेशन में, लॉ में क्या है कि इनिशियली यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द सैलरी पैकेज. ये मैंने पहले काफ़ी बार बोला है. सो इनिशियली व्हेन आई जॉइंड माई पैकेज वॉज ऑल्सो वेरी लो. सो आई वुड से कि आप डू नॉट लुक एट द मनी एंगल ऑफ इट, बिकॉज इवेंचुअली यू विल बी लर्निंग अ लॉट. एंड अगर आप कॉम्पिटेंट इनफ हैं तो 2-3 साल में ही आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, सो दैट you can do something by yourself as well. It is very important to work with the lawyer to understand how the litigation works. आपको वहीं से समझ में आएगा. लिस्ट ऑफ डेट्स वगैरह आप अपने इंटर्नशिप्स में भी कर लोगे, बट दैट एट द एंड ऑफ द डे यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ड्राफ्टिंग, उसमें परफेक्शन कैसे लाना है. रिसर्च आप इंटर्नशिप में करोगे, बट एट द सेम टाइम जब आप एक एसोसिएट की तरह रिसर्च करते हो, आपको केस दिया होता है, तब आप अलग तरह से करते हो. इंटर्न की पोजिशन में आप अलग तरह से रिसर्च करते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. एंड आई वुड से कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वन पर्टिकुलर थिंग ओनली. बहुत सी चीज़ें हैं, सब चीज़ें ट्राई करो. इवेंचुअली फिगर आउट योर इंटरेस्ट एंड गो इन दैट डायरेक्शन. जैसे कि मैंने इवेंचुअली सारा सब कुछ काम करके ये रियलाइज़ किया कि ड्राफ्टिंग प्रॉब्ली इज़ वन ऑफ द स्किल्स दैट आई नो द बेस्ट. एंड दैट इज़ व्हाट आई डू नाउ. कोर्ट जाना इतना नहीं होता है, बिकॉज आई फील पूरा डे कोर्ट में लग जाता है. सबका अलग अलग तरीका होता है. मुझे ज़्यादा बैठ के काम करना एक जगह पे पसंद है. एंड आई get engrossed into my work at one place, so I like it that way. You can figure out what you like. ये आपको काम करके ही पता चलेगा. जगह जगह you will be able to understand कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है. देन हमने जैसे ब्रीफिंग्स करी थी सीनियर काउंसल्स को. मुझे याद है मैं बहुत बार गई हूँ तुषार सर के चेंबर में, जो प्रेजेंटली हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, मिस्टर तुषार मेहता. उनके चेंबर्स में हम गए हैं ब्रीफिंग के लिए. एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम सर कि किस तरह से ब्रीफ किया जाता है, आपको कैसे केस पढ़ के जाना है, फाइल को पूरा फ्लैग करके जाना है, क्या क्या चीज़ें. अब आप हर चीज़ नहीं बता सकते हो. सीनियर एडवोकेट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका हर एक फैक्ट सुने, बिकॉज दे आर स्किल्ड इनफ टू रीड द फाइल बाय देमसेल्व्स. यू हैव टू जस्ट कम टू द मेन पॉइंट कि हमें हियरिंग में किस बात पे स्ट्रेस करना है. एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है. तो ये सब चीज़ें आपको बहुत सीखने को मिलेंगी अगर आप कहीं पे काम करते हो. आई वुड रियली से कि लिटिगेशन फर्म में काम करना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. एंड अगेन आई वुड से कि सैलरी को इनिशियली डू नॉट कीप इट इन टू कंसिडरेशन, बिकॉज इवेंचुअली देयर इज़ नो लिमिट व्हेन वी स्पीक ऑफ लॉ. देर आर पीपल जो थोड़े डिसग्रंटल्ड रहते हैं इस बात से कि लॉ करने के बाद भी इतना अच्छा नोबल प्रोफेशन है, बट इतनी अच्छी जॉब नहीं लगती, यू डोंट गेट पेड वेल. बट देन एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से कि वो शायद हर फील्ड में ही है. एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन यू, योर इंडिविजुअल स्किल एंड कैपेसिटी, कि आप कहाँ पर कैसे अपना मार्क बनाते हैं, कैसे अपने लिए काम ढूंढ के वहाँ जॉब सिक्योर करते हैं, क्या आपकी वर्थ है, किस तरह से आप उसे प्रूव करते हैं. The onus lies on you. So I would say when the legal profession is concerned, there is no end to the kind of options that are there. बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो इस एरिया में अगर आपको लॉ पता है. आपको एक अलग कॉन्फिडेंस भी आता है लॉ करने के बाद. So you really have to decide it after working for some time. थिंग्स विल बी क्लियर. सो जो लोग अभी से थोड़ा पैरानॉइड रहते हैं, थोड़ा स्ट्रेस्ड रहते हैं कि जॉब मिलेगी या नहीं, काम मिलेगा या नहीं, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर. सो ट्राई
टू वर्क हार्ड, अच्छे से अपने कॉलेज में LLB कंप्लीट करें, जॉब के लिए भी जॉब को ढूंढे, अच्छा कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लेंगे सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड अ जॉब। इंटरनेट पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आते रहते हैं, आप लिंक्डइन पे देखते रहिए लॉ ग्रुप्स फॉर लैंडिंग अप अ जॉब, एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ आपका हो ही जाएगा। एंड आई वुड से कि थोड़ा सा अपने होराइजन्स को ब्रॉडन रख के रहेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड अ जॉब एंड एज वेल एज इंजॉय योर वर्क एट द सेम टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंजॉय योर वर्क। अगर आपको मज़ा नहीं आता है लॉ में, आप ज़बरदस्ती किसी के कहने पे कर रहे हैं, तो इवेंचुअली वो लॉन्ग रन में इट रियली हार्म्स यू, योर करियर ग्राफ। So please be very careful with the choices that you make, and make sure that you're making it out of your own free will. And अगर आप लॉ में आपका इंटरेस्ट है और बहुत कुछ आप जानना चाहते हैं कम टाइम में, तो व्हाट आई वुड से इज़ जजमेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत से लोग पूछते हैं ड्राफ्टिंग कैसे सीखें, कैसे समझें कि क्या लिखना है, वर्ड्स का क्या मीनिंग है। देखिए, आप LLB करेंगे, साथ साथ वो सब चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, प्लस जजमेंट्स पढ़ेंगे तो एक हैंग आ जाता है ड्राफ्टिंग का कि किस तरह से लिखना है। कीप फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स, कीप फॉलोइंग आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। रिसेंटली मैंने एक लीगल ड्राफ्टिंग पे वीडियो डाली थी जहाँ पर मैंने सिखाया था कि ये एक ईमेल कैसे लिखते हैं, बिकॉज बेसिक भी लोगों के क्लियर नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज़ें साथ साथ करते रहिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए, एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स वन डे।